Hello, everyone. Thank you for joining us today for episode 3 of the Here Queer podcast. Today, we have Yasir Ali Khan, who is a global advocate for HIV awareness and harm reduction in queer communities with a focus on marginalized populations. Originally from Pakistan and now a newcomer to Canada, he brings over a decade of international experience in public health, community mobilization, and human rights. He is the founder and program director of HIV Buddies Canada, a grassroots initiative supporting South Asian, Middle Eastern, North African, and Muslim queer individuals living with or at high risk of HIV. He also serves as community coordinator with Reshape UK. Since beginning his HIV activism in 2014, Yasir has led national and regional initiatives across Asia, managed large-scale UN and global funded programs in Pakistan, and helped establish key networks. His contributions include leading Pakistan's first national research on substance use and misuse in Pakistan and developing the LGBTI Inclusion Index for UNDP, again, Pakistan. Yasir was honored with the Asian HIV Hero Award in 2022 and continues to advocate for equitable, culturally responsive healthcare within the global community. He is also an alumnus of the Duke of Edinburgh's Commonwealth Leadership Study, Canada 2023. Recently, Yasir was also honored with the PAUSE Toronto Awards for multicultural work on HIV in Toronto. A very warm welcome, Yasir. Let's begin the conversation. Thank you so much, Shaman, to give me the opportunity to talk about my experiences working with HIV since 2014 and living experiences and lived experiences as well. So I'm good. It's a morning and just like afternoon now in Toronto. So just relaxing Saturday, but still a lot of work to do. Relaxing Saturday, but still you are working. या स्टिल कुछ मैं बीमार था तो कर नहीं सका काफी चीजें तो अभी कर रहा हूँ. तो अभी आप बिल्कुल ठीक है या अभी आप फिर भी रिकवर कर रहे हैं? Totally fine. I'm just like working and these days रमजान भी है तो रमजान में रोजे रखना और साथ में सारा कुछ तो रूटीन थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो जाती है. 4 बजे उठना सुबह के तो दोबारा सोना फिर उठना तो फिर सारी चीजें कैचअप करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी और थक जाता है रमजान में आजकल. एनीवेज यहाँ और ये थकावट के बीच में भी आप यहाँ पर हो, हमको टाइम दे रहे हो, सो शुक्रिया. एज यू से तो हमारा पैशन है कि हम लोग जो हैं जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए उनका अपना कोई टाइम नहीं होता. उनके लिए यही काम होता है कि वो एक रिप्रेजेंट करें रियलिटी और पैशन के साथ काम करें. बाकी काम करने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन कम्युनिटी सपोर्टर मैं हमेशा कहता हूँ कम्युनिटी वर्क्स फॉर कम्युनिटी ऑलवेज वर्क फॉर. अगर पॉजिटिव कम्युनिटी है तो पॉजिटिव कम्युनिटी के लिए काम करती है तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है. पैशन के साथ काम करते हैं. अगर क्वेयर कम्युनिटी है और क्वेयर कम्युनिटी के लिए डिफरेंट इश्यूज के ऊपर काम करते हैं तो हमेशा इम्पैक्ट डिफरेंट आता है. और अगर कैंप सेक्स और सब्सटेंस यूज और हार्म रिडक्शन के ऊपर जब काम किया जाता है अगर वही कम्युनिटी से काम किया जाता है उन्हीं से लाया जाता है तो वो पैशन आता है उसके अंदर डिफरेंट इंटरवेंशनल अप्रोचेस आती हैं. तो खैर तो आपको क्या लगता है क्या तो आपको क्या लगता है दिस activism part is a 24/7 job? It's just like your passion. It's not activism life is totally different with the general community. आप कभी भी किसी भी वक्त आप जो है एक्टिव हो सकते हैं चीजों के ऊपर. अगर आप मैं रातों को भी जागा हूँ काम करने के लिए इन वर्चुअल
क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तो टोटली डिफरेंट था, दुनिया की अप्रोच जो है, रात शाम को हम बैठते थे। सो काम, जब आप लोग कहते हैं कि आपने इतना कुछ कर लिया, आपने कहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनको यही कहता था कि हमने जो जब काम किया है तो बहुत काम किया है, दिन रात एक कर दिया हमने। मैं पाकिस्तान में, मुझे याद है जब हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब हम में काम कर रहे थे, मैं एज अ मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन था। मेरी स्पेशलिटीज जो हैं वो एक्टिविज्म से हट के जो है वो डाटा कलेक्शन एंड ऑल प्रोग्राम एवेलुएशन, मास्टर्स मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। तो हम लोग दिन रात काम कर रहे होते थे, रातों को भी हम बैठे होते थे। मुझे तो याद है कि एक दफा हम लोग कोई मसला था, कोई पकड़ा गया, कोई कॉन्डम्स प्रोवाइड करते हुए। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल होते थे, कॉन्डम देना तक जो है वो जुर्म जो है वो किया जाता था। तो वो पकड़ा गया तो हम लोग, मैं और मेरी एक कोलीग जो है वो बैठे हुए हैं, और हम लोग रात के 10 बज गए और हम लोग उनको छुड़वाने के चक्कर में। आप जब काम करें तो पैशन आना चाहिए, तभी आपका काम जो है वो बेहतर होता है और आपके ही लोगों को फायदा होता है। मेरा तो ये सिर्फ ये कहना होता है कि मेरे से कल को मेरे बच्चे या मेरे जो नेफ्यूज हैं वो ये ना पूछें कि तुम पे जिम्मेदारी थी तो तुमने क्या किया हमारे लिए। तो अभी जो करंटली सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो साउथ एशिया में जो HIV की बात करते हैं हम, तो साउथ एशिया में जो करंटली सिचुएशन है HIV की एपिडेमिक जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं वही सोच रहा था कि इफ वी कुड हैव बीन ऑनेस्ट, इफ वी कुड हैव रियली ओपनड आवर हार्ट्स आउट, तो शायद बहुत सारी चीज़ें का जो मसला है वो पहले ही सॉल्व हो जाता। खैर छोड़िए, लेकिन मैं आपको अपनी पहला सवाल पूछता हूँ। शायद और भी कुछ सारी स्टोरीज, बहुत कुछ अभी आने बाकी है। आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू नो। आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में बोला कि बहुत डिफिकल्ट रहा है। वो एक अलग ही कल्चरल कम्युनिटी है। तो कैन यू जस्ट टेक मी बैक टू दोज अर्ली डेज इन पाकिस्तान, जब आपने HIV बडीज के बारे में नहीं सोचा हो, आपको केमसेक्स का एक्टिविज्म के बारे में शायद उतना ज़्यादा पता ना हो आज आज के ज़माने की तरह, और मेंटल हेल्थ भी आप जस्ट इवॉल्व हो रहा है, आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रहा है। तो आपको क्या लगा कि अभी एक्टिविज्म में जाना चाहिए? व्हाट वाज दैट मोटिवेशनल पुश? कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था आपके लाइफ में जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि अब बस, अब और नहीं होगा, हैव टू जस्ट से इट आउट लाउड? मेरा ख्याल है मुझे पीछे जाना चाहिए 2014 जनवरी में से पहले। तो पहले अगर मैं 2014 से 2014 से पहले की बात करूं तो तब मेरी भी लाइफ ऐसी थी, चुप के रहना है, कोई बात नहीं करनी, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात नहीं करनी, सेक्सुअल राइट्स के ऊपर बात नहीं करनी, ड्रग्स के ऊपर बात नहीं करनी, कोई क्या है, कैसे है, क्यों है, कोई ट्रांसजेंडर है उसको देखना नहीं है। जस्ट लाइक a regular person who's just like not talking। जो हमारा कल्चर साउथ एशियन कल्चर होता है, जो कि आपके बच्चों को जो है वो बिठा के कभी नहीं बात करता, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात नहीं की जाती। अभी भी कभी कोई बाप जो है या माँ जो है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बेटी या बेटे को नहीं बताएंगे कुछ भी। तो हमारा जो कल्चर है वो बड़ा ही क्या कह सकते हैं, बैकवर्ड है, और अभी भी बैकवर्ड है। 2026 चल रहा है और अभी भी माँ जो है अभी भी कभी आपको नहीं बताएगी कि डेट्स कब आएंगी तो उसमें आपने क्या करना है। अभी आप जब बेटे को बाप नहीं बताएगा कि अगर आपका जो है वो कोई और मसला होता है सेक्सुअल हेल्थ में या कोई आपकी और प्रॉब्लम होती है तो बाप कभी नहीं बताता, आपसे शर्म खाते हैं हम लोग। तो वो मैं भी ऐसा ही बंदा था 2014 से पहले। 2014 पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की प्रॉपरली एज अ मॉनिटरिंग एंड evaluation person. So this organization was Nazmil Health Alliance, was working for HIV, especially for positive for the testing and sexual treatment and diagnoses and providing prevention services. तो मैंने उससे जब मेरा मकसद ये था कि मैं जानूं ज़्यादा तरीके से कि जो मैं जिस तरह मैं रह रहा हूँ एज अ पर्सन, तो क्या मैं भी
काम भी कर सकता हूँ इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा यहाँ पर अभी भी 1 महीना ये भी हुआ था, तो मैंने कहा कि अभी भी लोग बात नहीं पसंद करते HIV के ऊपर करना, कि अगर कोई पॉजिटिव बंदा है तो उसके ऊपर लोग करना बात पसंद नहीं करते। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो कासिम इकबाल ख्वाजा थे, उन्होंने कहा कि यासर एक शो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, UN एड्स करवा रहा है विद द UNDP और सारा कुछ, तो तुम करना चाहोगे उसके ऊपर जाके रिप्रेजेंट करना चाहोगे पॉजिटिव कम्युनिटी को? तो मैं जस्ट तो मैं चला गया बस वहां से, जो है टीवी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर यासिर साहब पहुंच गए हैं, और यासिर ने कहा कि नहीं भाई अब तो बात की जाएगी इसके ऊपर। तो यासिर साहब जो है वहां पे पहुंच के जो है उन्होंने ओपनली कहा कि अगर हेल्दी लाइफ गुजार सकता हूँ तो बाकी क्यों नहीं गुजार सकते। ये एक राइट है, अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ या कोई भी आपको इश्यू है उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। आए बाहर आए, मेडिसिन अवेलेबल हैं। वो वाले ज़माने जा चुके हैं कि अभी इसके ऊपर जो है ला इलाज चीज़ें हो जाएंगी, जो सॉरी मैं बहुत सारी उर्दू बोल रहा हूँ, सो इसमें जब नहीं, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। तो थिंग इज कि उस जमाने से मैंने शुरू की इसको, कैंपेन को बड़ा प्रोएक्टिवली। सबसे पहले क्या किया कि पाकिस्तान की जो हमारी 6 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हमारे अंडर आती थी, जिसको मैं मॉनिटर करता था, उसी की जो स्टाफ था उसको इतना लिटरेट किया कि अगर कोई पॉजिटिव बंदा उनके पास आ जाए तो वो उनके लिए अजूबा ना हो, वो एक जो है उनके लिए एक अजीब सी चीज ना हो। तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट थी जो उनको चीजें बताती ही नहीं थी, अगर हम करिकुलम देखें, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सबके अगर देखें तो उनके सारे करिकुलम जो हैं वो उनके ऊपर इवन के डॉक्टर्स के अंदर भी HIV के अंदर, MBBS के अंदर भी डॉक्टर HIV का कुछ नहीं बताया जाता, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि जी आप मुझे मेरी जरा काउंसलिंग तो करिए, एज अ मॉक काउंसलिंग करें, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करें। मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या बताते हैं क्लाइंट को, कि वो कैसे अगर वो पॉजिटिव आ जाता तब आप क्या बताते हैं। तो मैं पहले क्या करता था कि मॉक इंटरव्यू करवाता था। तो एक काउंसलर मैंने को कह दिया कि आपको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो वो कहती है कि मैं मास्टर्स करके आई हूँ और इन्होंने मुझे कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता। मैंने कहा आपको कुछ नहीं आता, लेकिन बात है आपको काउंसलिंग अच्छी आती होगी, काउंसलिंग आप अच्छी कर लेती होंगी। तो खैर वो बड़ा ही फड्डा डाला। तो मैंने कहा नहीं, देखिए मैं आपकी इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ कि एक कल को कोई मेरा भाई या बहन आए आपके पास, आप उसको सही तरह बता सकें, जो कि हमारे माशरे में जाके फिर जब हमें स्टेटस मालूम होता है किसी भी चीज़ का, तो हम कहते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी। बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऐसे ही गलत सुसाइड्स वगैरह किए और बहुत सारी चीज़ें हुई। आई मीन दीज आर द रियलिटी इन बैक टाइम। सो ये बात है 2014 से 2018 तक हमने काफ़ी इनके ऊपर काम किया, इम्प्रूवमेंट्स हुई। नेशनल लेवल के अंदर जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर काम किए गए, मीन लेक्चर्स, फिर जितनी ब्रॉडकास्ट, जितना जो कुछ हो सकता था उसको किया। 2018 में फिर मैंने HIV बडीज थोड़ा स्टार्ट किया। तो उसके ऊपर क्योंकि हमारे पर वर्चुअल कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ जो है वो जो है ना उसको लेके चल रहे थे, पीयर्स नेविगेटर और आउटरीच वर्कर्स, उन्हीं की कैपेसिटी बिल्ड करके उन्हीं को भेजते थे या खुद चले जाते थे। तो वो बहुत आई मीन एक 100 बंदा जो है पूरा एक 100 के करीब लोग थे जो कि इसकी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 100 लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक ऑनलाइन या वर्चुअल कुछ लेके चलें, या कुछ लेके चलें कि ऑनलाइन। फिर मैंने एक HIV बडीज के नाम से जो है पेज बनाया फेसबुक में उस जमाने में, तो उसको थोड़ा थोड़ा लेके चले। तो बस ये चीजें थी, इस फेसबुक। तरह मेंटल हेल्थ
फेसबुक उस जमाने में जो है, अभी भी मेरा फेसबुक बहुत एक्टिव है। इंस्टाग्राम अभी भी वैसा एक्टिव नहीं हो सका मेरे से, क्योंकि वो फेसबुक के ऊपर ही ज्यादा एक्टिविटीज अभी तक जो है, जो पुराने लोग हैं वो उसी के ऊपर अभी भी मुझसे पूछते हैं, यासिर भाई मैं अच्छे मेरी शादी हो रही है, तो मेरी वाइफ को प्रेप खिला, तो वो कहते हैं मेडिसिन करें या कॉन्डम यूज करें। तो मैंने कहा देखिए कौन सी ऐसी WHO की गाइडलाइन है, मैं रेफरेंस के साथ जाता हूँ हमेशा भी किसी चीज को, डॉक्टर से पूछिए कि कौन सी ऐसी WHO की गाइडलाइन है जब आप अनडिटेक्टेबल हो, और अनडिटेक्टेबल के बाद जो है आपकी वाइफ को जो है फिर भी प्रेप यूज करनी पड़े, या पार्टनर को आपकी प्रेप यूज करनी पड़े, या कोई ऐसी कोई गाइडलाइन या कोई ऐसी रिसर्च या कोई स्टडी है जो कि उनको यूज करने की जरूरत है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी गाइडलाइन, ऐसी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि अगर आप अनडिटेक्टेबल हो चुके हैं तो आप अनट्रांसमिटेबल हैं। हमने एक ये बनाया है, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ कि ये देखें। सो इसके ऊपर हमने बात की है, ये पीछे हमने इस तरह की बात की कि इस तरह की हमने बहुत सारे, आजकल हम पोस्ट कार्ड बना रहे हैं कि आई एम नेगेटिव ऑन प्रेप एंड अदर से ओ आई एम अनडिटेक्टेबल, ओ यू आर नॉट अ स्टार। So it's just like chatting of social media, just chatting and what kind of chat is it? So just like dating. This is interesting actually. So ये हम आजकल यहाँ पर कनाडा में बना रहे हैं, तो मैं अभी भी फेसबुक पे लगाता हूँ, वो हर जगह जाता है कि अगर आप अनडिटेक्टेबल हैं तो अभी भी हमारे डॉक्टर्स क्यों नहीं समझ पा रहे कि इतनी रिसर्चेस और इतने एविडेंस और इतने स्कूल्स के ऊपर काम करने के बावजूद हम इसकी बात करें। तो अभी भी बहुत सारी चीजें अभी करने की जरूरत है। एक सवाल के ऊपर ही आप I know this is your story and I should not stop you, but ये आपने बोल दी ना तो इमोशन थोड़ा अंदर से जाग गया कि ये जो आप बोलो ना, आजकल भी डॉक्टर्स ये समझ नहीं पा रहे हैं। आई गिव यू अ वेरी रीसेंट एग्जांपल। मैं दिल्ली में काम कर रहा था, दिसंबर में हुआ है ये। आई वॉज टेकिंग माई ART मेडिकेशन फ्रॉम दीनदयाल हॉस्पिटल एंड वहाँ पे डॉक्टर्स लोग मेरे को बोल रहे हैं, ठीक ऐसे देखे और देखने के बाद बोल रहे हैं, ऑफिस में बॉस को तो नहीं बताया। आई एम लाइक व्हाट, मतलब if you do not promote what is U equals to U, which is ideally a doctor's job, which is ideally a counselor's and a therapist's job, to tell and calm the patients down कि देखो भैया U equals to U होता है, that should not come from you and me. Ideally it should first come from the medical system. Yeah, you are totally right. But the thing is, they don't want to understand and they don't want to accept it. This is a problem. And the literacy work is totally, अभी तक जो है उन्होंने they did not improve the literacy about the real cause and also I think they improved the literacy, they understand everything, but it is all about acceptance. एंड ऑल्सो कल्चर एज वेल। सो आपका कल्चर क्या कहता है? आपका कल्चर अगर यहाँ पर भी ऐसे, अब आप ये ना समझे कि मैं टोरंटो में रहता हूँ तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही साउथ एशियन मिडल ईस्टर्न कम्युनिटी जो है, इवन इन वाइट कम्युनिटीज ऑल्सो, जस्ट लाइक आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट लाइक डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन जनरल HIV को टैबू ही दिया जाता है। कि मैं कहता हूँ कि आप TB को क्यों नहीं टैबू लेते, आप हेपेटाइटिस C को टैबू क्यों नहीं लेते, और आप शुगर को टैबू क्यों नहीं लेते? अदर डिजीजेज जो है वो आपकी सारी जिंदगी रहती है। बेचारा HIV तो कुछ भी नहीं कहता आपको, एक दफा ट्रांसफर हो गया। और दरअसल मसला ये है कि हमने उसको नेगेटिव वाली सेंस में रखा है कि जी वो तो के सेक्स के। आई थिंक शुरुआत से ही हमने उसको नेगेटिव खाते में डाल दिया है कि तू भैया नेगेटिव में ही चलेगा, जितना भी तेरा नाम पॉजिटिव हो। हाँ, वो आप जितना मर्जी पॉजिटिव रहें तो आप नेगेटिव रहेंगे। तो एनीवेज दीज आर द रियलिटी। स्ट्रेट कम्युनिटी, अभी हमारे पास टोरंटो में इस टाइम स्ट्रेट कम्युनिटीज के अंदर जो है वो एपिडेमिक HIV की रेशियो ज्यादा है एनी LGBTI कम्युनिटी के अंदर। सो अभी तो हमने बाकी मुल्कों में तो ऐसी बात ही नहीं की हमने तो बाकी कम्युनिटी। अभी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की हमने जब देखा तो स्ट्रेट कम्युनिटीज के अंदर जो HIV की एपिडेमिक ज्यादा निकली। सो और इसी तरह ही बांग्लादेश के अंदर आप देखें तो अब बांग्लादेश में जो एपिडेमिक जो बूस्ट करी है वो उसकी अंदर भी स्ट्रेट कम्युनिटी और अदर कम्युनिटीज जो हैं वो उसमें एपिडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्योंकि आई थिंक मेनी पीपल
और ना ही हमने किया और ना ही हमने एक्सेप्ट किया, नॉलेज हमने ब्रॉडली जो है वो उनको बताया। I think many people also do not know. I mean, you might know, but I'm still sharing. कि जब ये slave trade start हुआ था, when the actual epidemic of HIV started, long time ago, तब जब लोग मरते थे मतलब इसको लेके, तो that time, historians now say that female and straight couples, they had more HIV numbers than homosexuals. It was because वही plantation workers जो यहाँ से वहाँ जाते थे, and it was all about having multiple partners, because as much as we hide sex, but it is an important part of a human being's life. देखिए जी, ये सिर्फ सेक्स की वजह से तो नहीं हो रहा ना। तो आप अगर टीका लगा रहे हैं किसी को दूसरे का टीका, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वैक्स जो थे हमारे मीन साउथ एशिया में, क्वैक्स का जो है वो रियलिटी थी। क्वैक्स एक ही टीका सबको लगा रहा है। हमारे पूरे के पूरे विलेज जो है फाउंड हुए हैं HIV के साथ। सो ये तो हम बात ही नहीं कर सकते कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ जो है वो हो रहा है। अगर क्या सेक्सुअल एक्टिविटी पूरे विलेज ने आपस में किया जाता है कि यार क्या बोंगी मारी है इन्होंने। So these are the realities of the our culture. So this is not जितना मर्जी पढ़ा दो, जितना मर्जी समझा दो, पर हमारी वो कल्चर बैरियर्स जो है ना वो हमेशा रहेंगे और वो हैं। तो खैर आप दूसरा अगला सवाल पूछिए ताकि हम आगे। खैर मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, 1 घंटे में तो सॉल्व होगा नहीं। तो we were talking about so much of the things that you have already done, and there will be so many things that you will do, and still in your lifetime there will be many things that you will not be able to do. As human beings, we all understand that part. कि आप सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हो for everyone's betterment, right? And there is a cost to it that you pay in your personal life. So can you personally say that what are those costs that you have paid, and some of it you are okay with it, some of it you might not be okay with it, and how do you deal with it? शबन, जब हम कल्चर अपने की बात करते हैं ना, स्पेशली रिलीजन, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वी आर सो मच कंजर्वेटिव सोसाइटी। सो जब हम इस तरह ओपनली सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात की है मैंने जब भी, और HIV के ऊपर जब भी बात किया, तो मुझे बहुत गंदा और बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया बहुत सारी चीज़ों को लेकर। पर मैंने जब उसे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा ये तो हो गया, सिर्फ यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। पर वो ऐसा होता नहीं है। तो जब यहाँ से सुन के यहाँ से निकलता नहीं है, वो आपके दिमाग में भी रहता है थोड़ा सा, वो आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन मोस्टली मैं चीज़ों के ऊपर खड़ा हुआ कि नहीं भाई, अब हमें इंसानों की जानें बचानी है, ना कि हमने बैठकर जो है वो मातम मनाई जाना है। थोड़ी सी मेरी उर्दू काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मैं कहता हूँ आपको। तो बोल so जो I mean we don't have to just like, I mean, I sacrifice many things, I mean, many too much enjoy with friends. I lost many friends about oh no, I think this is not the right time to talk with the Yasser. And I mean, so in Pakistan I lost many good friends who don't like me to work on it, and also not very openly about it. But the thing is कि ठीक है, जो चला गया वो चला गया। जो बट बहुत सारे अच्छे टाइम जो थे वो मैंने लूज किए इन चीज़ों की वजह से, जो कि मैं फील करता हूँ कि काश मैं इसी के ऊपर ना लगा रहता, मैं अपनी ज़िंदगी भी एंजॉय करता। लेकिन खैर आप जब मैं स्पेसिफिक नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो जब चीज़ें हो चुकी हैं तो मैं उसको ना खुरेदता नहीं हूँ, हो गया जो हो गया। सो मैं फिर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो एक एक्टिविज्म की लाइफ होती है वो इजी नहीं होती, वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहा होता। देखें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जब आप काम करते हैं पैसा तो आता ही आता है आपके पास। मैंने ये नहीं कभी मुझे, बल्कि लोग कहते थे तुम गलत करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड काम करते हो। हमारे कभी हाउसिंग की किसी को प्रॉब्लम हुई है, किसी को रेंट का प्रॉब्लम हुआ है, कभी कोई
खाना नहीं है, रोटी नहीं है, तो हम लोग सब कुछ अरेंज कर रहे होते थे कि यार इसका कुछ हो जाए, कहीं ना कहीं से जेब से अपनी कहीं से, क्योंकि इतने हमारे फंड्स नहीं थे हमारे पास भी, पर हम कितना कुछ कर रहे होते। तो वही काफी था। मीन काफी चीजें चली पाकिस्तान में। शुरुआत जो है वो HIV एक्टिविज्म से हुआ। बाद में जो है जब मैं एडिक्शन से गुजरा तो मुझे समझ आई कि ये तो बहुत बुरा मसला है, साइको एक्टिव सब्सटेंसेज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। उसके ऊपर भी एक्टिविज्म शुरू किया, तो उसके ऊपर भी प्रॉपरली किया, ऐसा नहीं किया कि छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि यासिर जो है वो कैम सेक्स की कैंप के ऊपर सेक्स करवाता है लोगों को, और कैंप सेक्स की उनको नहीं पता था कैंप सेक्स होता क्या है। सो दिस वाज जस्ट लाइक so much taboo on especially for use on substances, and also investigations और ये वो सारी चीजें चलती रही। लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटा। और एक दफा मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं पाकिस्तान में UN एड्स की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने कहा यासिर आज मैं तो ये कहती हूँ यासिर जहाँ पर हो और कैंपसेक्स और पार्टी एंड प्ले की बात ना हो, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की बात ना हो, वो बन चुका है हमारे नेक्स्ट 3 इयर्स की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर शामिल हो चुका है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा देखो शुरू कहाँ से हुआ, HIV के ऊपर, पॉजिटिव कम्युनिटी के ऊपर, एक्टिविज्म के ऊपर, उनकी बात के ऊपर लोगों ने उनके ऊपर प्रोग्राम्स चलाए, उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत एक्टिवली काम किया, उनको रिप्रेजेंटेशंस हुई पाकिस्तान में, पूरे साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में कोलैबोरेशन हुई, ईस्ट एशिया यूरोप लेवल तक बात गई। फिर 2018 में जब मैंने पहली दफा जब कैंपसेक्स की और मैं साइको स्टिमुलेंट्स की बात की इन एम्स्टर्डम के अंदर, तो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो पाकिस्तान हमारे पास तो कभी कोई केस ही नहीं आया स्टिमुलेंट्स को लेके, अगर टीना का या ये आइस का, और कोई केस ही नहीं आया। तो मैंने कहा जी आपके सामने मैं जीता जाता केस हूँ, तो आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा काफ़ी चीज़ें, मैट साउथवेल हैं, आप बेन कॉलिन आपको बता सकते हैं, जिन्होंने मुझे लिंक किया उनके साथ, बेन के साथ भी। तो मैट ने बेन कॉलिन को कहा 2019 में कि ये यासिर है और इसका तुमने ख्याल रखना है। तो ये मैट लंदन का ही है क्या? जी मैट साउथवेल। अच्छा, आई थिंक आई नो हिम। तो हमने बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर इस चीज़ों की आवाज़ उठाई कि मेंटल हेल्थ और एडिक्शन जो है पाकिस्तान में भी वैसे ही है जैसे बाकी मुल्कों में है। फिर साउथ एशिया के ऊपर एशिया कैंपसेक्स प्लेटफॉर्म का इनिशिएटिव लिया। उसके ऊपर भी बहुत सारे मसाइल लोगों ने क्रिएट किए कि ओ माय गॉड ये तो हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करता फिर रहा है। सो यू नो कहीं भी ऐसा मोमेंट नहीं आया कहीं सुकून मिला। तो कई दफा जॉब्स जो है कंप्रोमाइज करनी पड़ी, कई दफा जो है फैमिलीज के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ा, बहुत सारी चीजें। और फिर से बोलना, ये दोनों लाइन फिर से बोलना, आई हाईलाइट देम। लोग आपको पसंद नहीं करते जब आप आवाज ऊंची करते हैं, दिस इज अ रियलिटी। ठीक है, तो खैर पाकिस्तान में तो एक डिमांड थी मेरी, वो मेरी जॉब ऐसी थी कि मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन इन प्रोग्राम मैनेजमेंट हर किसी को जरूरत थी, और मैं उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट था। हाँ, मेरा जो मेरे सीनियर थे वो खुद कहते थे कि यासिर इज एक्सपर्ट इन अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो उससे नजरें भी बचा के जाना कि वो तो सूंघ लेता है कि कहाँ से मुझे चीजें निकलेंगी। तो मैं इसलिए और मेरी थोड़ी सी, हमारा वो वाला ग्रुप था 2014-15 वाला, उन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान में। जो कि नए लोग आए उनको था कि बस हमने शोहरत कमानी है, दिनों और रात हमें शोहरत मिल जाए। मैंने कहा था ऐसे नहीं होता, हमने बहुत 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 काम करके हम यहाँ तक आए हैं। दिन रात ट्रैवल करके, रातों को हम ट्रैवल करते थे, सुबह हम ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते थे, कराची, लाड़काना, हैदराबाद, रावलपिंडी और लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद जो है मुल्तान, सरगोदा, बहुत से 10 ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर थी। तो वहाँ भी मसला नहीं था मुझे कभी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि आप इस चीज के ऊपर आवाज उठाते हैं, आप उनके लिए मसला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेपोटिज्म करके आपने जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग रखे हैं वो और जो आपकी अपनी चीजें हैं वो बाहर आ जाती हैं, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे।
आप क्योंकि उनके लिए मसला आपको उनके हाँ में मिला के चलने वाले लोगों में से नहीं है, उन्हें पता है ये बात। तो वो बेशक आप वो कोई भी वो आपका आपका अ, आपकी आपका घर हो या आपका आपका वर्किंग प्लेस हो, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आती है एक्टिविज्म। कुछ नहीं करते, पर बहुत सारे करते हैं। मैंने आपको 99% जो है आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मैं आज ही एक इवेंट पे गया था, वार्ता ट्रस्ट बोल के. So they were doing a very nice event on dementia in the community. They were trying to raise awareness कि LGBT community members में भी dementia होता है. And two things that मतलब हाँ होता है, मतलब disease does not differentiate. तो अब क्या होता है कि हमारे community में there are very few people like Ben, okay, who are having a partner in the old age. So that is also the whole point in building Here Queer, to build a kinship beyond the bloodline. एंड ऐसा नहीं हो कि हम हुकअप करने के बाद अगर जब हम हेल्प मांगने की जगह पहुंचते हैं कि सपोज मेरे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुआ एंड मैं किसी के साथ मैंने सेक्स किया और उसको मैं बाद में जाके बोला कि हे आई एम डिप्रेस्ड, कैन यू टेक मी टू अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल, वो बोलेगा कि भाई आई डोंट नो यू, आप कौन हो, वी हुक्ड अप, आई डोंट इवन रिमेम्बर यू. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? मतलब आपके जरूरत के टाइम पे कोई नहीं मिलता है, लेकिन सब आपके मजे उठाने के लिए आ जाते हैं. एंड इस इवेंट पे देवर द इवेंट वाज क्यूरेटेड फॉर पीपल हु वर अबव 30 years old, बट मैक्सिमम वर यंगस्टर्स. और वहां पे facilitator himself asked a question, how many of you do you know that people above 40 years old? I was the only one who raised hand, because I have some friends who are 78 like Ben, and then some more people who are in that category, and everybody was looking at me. I'm like, oh hello. एंड आई फेल्ट द रियलिटी चेक कि हाँ भाई, मतलब मेरे फ्रेंड्स उस उम्र के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके होंगे. ठीक है. तो मेरे को वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई कि एजिंग विद HIV. वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन एजिंग विद disabilities within the community? What should we do? How have you dealt with? Has this question come into your mind? So aging with the community, with the disability, with the उसमें यहाँ पर ना कनाडा में भी काम हो रहा है उसके ऊपर की बात की जाए, क्या मसाइल आपने हैं, क्यों होता है, कहाँ उनको लिंक किए जाए. तो मैंने जिस तरह, मैं भी 40+ हूँ, मुझे भी आप काउंट करें कि आप मुझे जानते हैं. तो जब मैं मेरी हमेशा से ये रही कि मैंने हमेशा अपनी फैमिली के अलावा मैंने चुगन फैमिली भी रखी है, ताकि कभी कहीं तो बात कर सके ना. जैसे कुलीग से तो वो मेरे बिन फैमिलीज थे, हम लोग अक्सर बातें कर, यार मैं तो आज ना मैं थक गया, मैंने उससे मेरी उसने दिमाग खा लिया, मैं तो बहुत थक गया उसकी बातें सुन सुन के. मैं जस्ट लाइक जर्नल डिस्कशंस एंड मीन बेन मेरी लाइफ में 2018 से है. Always, Nia is just like my mother. So when just like when chosen families, ये वो मेरी real mother तो नहीं है. So the communities, does not mean they're only for LGBTI communities. Just like general communities, also just यार किसी को बहन कह दिया है तो उसको वो मेरी बात तो सुनेगी ना, मुझे कोई अंडरस्टैंड कर सकता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, Absolutely. मैं उससे बात कर, मैं किसी मुश्किल में हूँ तो वो मेरे सामने खड़ा है. अभी मैं यहाँ पे अकेला होता हूँ टोरंटो में, मेरी सर्जरी थी, मैं उठ भी नहीं सकता था, और मेरा जो फ्रेंड है वो आके बैठा हुआ है, मेरे जो चोजन फैमिली है वो यहीं पे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि चल हमारे घर चल. दे आर वाइट, देयर से ओके लेट्स गो टू आवर होम, सो वहां पे हम तुम्हारी ना ड्रेसिंग और सारा कुछ करेंगे. तो मैंने कहा नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल एट माई होम. तो मैंने कहा मुझे 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू गो अपस्टेयर्स. तो बड़ा घर है, सारा कुछ है, बट लग्जरी ये है कि मैं वहां पे मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, पर मैं फिर भी वो हर रात मेरे पास आते हैं
मेरे पास सोते हैं, हालांकि मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, मैं उठ भी रहा हूँ खुद ही से, वो कहते हैं हमें ऐसा मरीज नहीं चाहिए जो खुद ही सारा कुछ करता फिर। तो मैंने कहा देखो, अभी मुझे लिए इतना ही बहुत अच्छा है कि तुम लोग यहाँ पर हो, योर प्रेजेंस इज इनफ फॉर मी, राइट? सो Sometimes the presence is enough. प्रेजेंस ही है ना काफी, और इतना ही काफी होता है। सो चोजन फैमिली आपको हमेशा रखनी चाहिए। आप समझें कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे अभी मैं जवान हूँ, 26 साल का हूँ, 28 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, तो अभी तो मुझे जरूरत नहीं है लोगों की। तो यकीन करें, जितने आपसे थोड़े बड़े उम्र के होते हैं लोग, वो आपको सिखाते हैं कि यासिर ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तुमने यहाँ पे चलना है, तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें पुश तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता रहे हैं। पर हम एक्सपीरियंस के साथ जब गिरते हैं तो फिर हम कहते हैं हाँ वो देखो उस दिन वो जो मुझे डेविड कह रहा था या मुझे कोई फलाना कह रहा था ना कि यासिर तुम्हें थोड़ा टेक केयर करने की जरूरत है, तो मैं फिर भी, और मैं समझता हूँ कि वो फिर भी आज भी वो मेरे साथ हैं कि दीज आर द फैमिली, दीज आर नॉट फैमिलीज। वो ब्लड रिलेशन वो नहीं कि जब आपके पास मुश्किल आई तो आपके पास चले गए, और जब आपके पास आसानी आई तो आपके पास आ गए। So when life is not only age, life is also experience. So sometimes you are getting these experience early ages, and sometimes you are getting in 70s, sometimes 80s. I mean, it's depend on your experiences. If you have no luxuries, then you're fighting every day. So when अगर आपका पैसा नहीं है तो definitely we are fighting every day for so many needs and important work and health and everything. I mean, definitely I'm not talking about the पैसा. Is there I mean relationships में मसले हैं और भी problems हैं, तो आप every day अगर आप बाहर निकल रहे हैं, so you're learning every day. So they are coming with the everyday learning. What you are trying to say is you don't have to have blood relations to be emotionally attached to somebody really, and then take care of them as you belong to them or they belong to you. Yeah. Yeah, same thing when I did not told him because I know him about my hernia surgery, and he messaged me, hey, Shaman told me you had a surgery. And I said, come on, Ben, I'm just like a same person. No, he sounded very nervous and very worried the moment I told him that, Yasir, I will not. Actually, I felt bad. So I told Ben that, you didn't tell me that he is not well. He had a surgery. Why did I have to ping him at this point in time? Let him just breathe through his life first. We'll talk about it. And he immediately responded, I don't know this. And he was vanished. Yeah, because he messaged me immediately. He vanished. Probably he immediately texted you that time. Yeah, I said, Ben, it's a normal thing. Can you imagine? There was a conference in Munich, and there was a pre-conference of the chemsex, and the same day I had a surgery, the first surgery, and I did not tell to anyone. So I came back No. from anesthesia, and I'm just like, I said, I'm in anesthesia. Can you give me so I have to present virtually in same night. And I said, oh, it's okay, I will just Oh my give God. my pillows in the back, and came, hey, I'm here. And Ben said, what happened with you? It's just like this is activism. These are the chosen families answer. So we always have to I know. this helps me. And I think slowly you are also becoming my chosen family, whom I can just reach out and whom I can yes. And I can eat your head with all the rubbish nonsense happening around. Yeah, so don't worry. Okay, let's move to third question. If you have any third question, Okay. because we are just like Yes, I do have. So I'll just quickly merge two questions for the paucity of time. So the decision that you moved from Pakistan to Canada, was it something that intrigued you, motivated you? Was it a strategic plan,
or it just happened because it needed to happen for some reason. And then probably uh, when you talk about HIV buddies, right? And you say it's a virtual platform. Also, it's an in-person platform, which I was looking at, that you organize parties, you host different meetups. So, is it something beyond an organization as well? How do you So look at it? yeah, let me go first about the moving to Canada. So I was very stable in Pakistan. I was just like, but always have some serious difficulties. So then I talked with the Ben and other things as well. When I was so established in Asia rather than in Canada. I'm still struggling in Canada for full-time jobs, full-time, just like, because people are thinking they have their thoughts, because we are culturally coming with same thoughts. So so it was then I decided to move to Canada, because I have two children as well, and I have to build my grow my children in that country where they can respect their father, who are just like not a dirty person, but just like also there was some difficulties also. I said, when a daddy might be would be not helpful for my children and my for the community as well. And since I moved to Canada, there's still people are working on ChemSec, but not what I was just like pushing on to organization. Hey, let's do this, let's do this, let's do on mental health work, let's do work on sport groups, let's do work on the so many things. So but so this is the part. So let me come on your second question of HIV buddies. So HIV buddies were initially started with the virtual, just like online platform in 2018. So it became very famous because I was making videos and posting on my Facebook with the just like information about what is HIV, what is, if you're positive, then what we are doing. So what and what kind of treatment centers we have. And also and उसी वक्त जो है वो COVID-19 जो है वो मैं भूल गया था कि मुझे उर्दू भी बोलनी है हिंदी भी बोलनी है And so नहीं ठीक है 2019 और 20 के अंदर जो है आपको अटैक कर गया COVID-19. So COVID-19 arrived in 2020 in 20 early and 2019 late. So in Pakistan, so lockdown हो गया, positive लोग जो थे वो उनके पास treatment नहीं है, कोई information नहीं है. So that platform was so helpful for the community. If you have not no medicines, you can contact us. So we will help a lot of community, just like providing ration, providing shelter issues, provided with the collaboration with the organizations. That time I was working in the national program with the National AIDS Control Program as a monitoring and evaluation of 10 organizations. So तो कोविड ने जो है वो काफ़ी इसमें हेल्प की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर. वो अच्छे टाइम पर जो है स्टार्ट हो गया HIV बडीज़ का प्लेटफॉर्म, और जो कि काफ़ी लोगों में लिंक, जो बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में फंसे हुए थे, ट्रीटमेंट उनके पास नहीं था, वापस नहीं जा सकते थे, उनकी जो है वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में शुरू करवाई. तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म रहा. So but when I moved in Canada, so I realized, so I tried to start work with the organizations, but every time just like short-term contracts and very small jobs, just like peer support workers. So I was still working for peer support worker with several organizations. So but then I realized कि यार मेरा ख्याल है कि HIV बडीज़ की बहुत ज़रूरत है कि साउथ एशियन एंड मिडल ईस्टर्न कम्युनिटीज़ की आवाज़ जो है ब्राउन कम्युनिटीज़ और मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ जो है वो इस सेक्टर के अंदर बहुत लो है. तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अभी कल्चर, अभी यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत काम कर रही है लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको मैंने ज़रूरत समझी, तो मैंने इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से, जो कनाडा पाकिस्तान में भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन ही थे, ना कि सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. हम स्पोर्ट ग्रुप चलाते थे, हम लोग हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे जो कि हम लेके चल रहे थे, मेंटल हेल्थ का, केमसेक्स का, और सब्सटेंस अब्यूज के ऊपर. और उसके बाद जो मैं पाकिस्तान यहाँ कनाडा मूव हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको दोबारा से शुरू करते हैं. तो अब दोबारा जो है शुरू किया, तो अभी तो हमने
काफ़ी आउटरीच की है, प्रेप के ऊपर काफ़ी लोगों को रेफ़र किया है, ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी लोगों को रेफ़र किया है। उसके बाद जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनको जो है इमिग्रेशन की जो है लॉयर्स को लिंक किया है फ्री में। जो जितना हमारे पास नॉलेज है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। और हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो स्मॉल टॉकिंग, हमारी इस वक्त 4 कैंपेन्स चल रही हैं। लेट्स टॉक, जो कि हमारी छोटी छोटी वीडियोस हम एनिमेटेड बना के पोस्ट करते हैं, अरेबिक के अंदर अभी पब्लिश हो चुकी हैं, पंजाबी के अंदर हो चुकी है, और इंग्लिश के ऊपर हो Wow. चुकी है। ठीक है, हमारा इन फ्यूचर हमारा हिंदी और उर्दू, और क्योंकि हमने ये समझा कि पंजाबी इज मोर बेटर बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल आर पंजाबी इन कनाडा। सो और जो नेक्स्ट है हमारा उर्दू, हिंदी एंड फारसी के ऊपर, पर्शियन के ऊपर काम करने का है, पर हमारे पास पैसे नहीं है इसमें। So these and second is national and international knowledge exchange hub, like what we are talking about. So, and also the third one is dancing buddies. Dancing buddies is just like invite community and give them food, they give them drink vouchers as well, and talk about the sexual health and the current issues and what they are looking for. If they are looking for any support, we are providing support in several matters, like housing issues, like prep. They have no insurances of the prep to start the prep as well, so the treatment as well, they don't know. And there are some students as well, so they're mostly Indian, Bangladeshi and Pakistani also suffering with these issues, and South Asians and Middle Easterns as well. So ये हमारी सर्विसेज अभी चल रही है। हमारा ऑफिस यहाँ पर है PWO की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और दे आर आवर ट्रस्टी, एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू रजिस्टर एज वेल। एंड हम लोग का काम जो है वो वर्चुअल से निकलकर बहुत पहले पाकिस्तान में ही बाहर आ चुका था। और लेट्स टॉक हमारी है, जैसे लेट्स टॉक क्या बात करनी है, कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, कोई कम्युनिटी पर्सन जो है वो आके बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, रेफर हम उनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रेफर करते हैं, खुद भी बात सुनते हैं, तो हमारे पीयर नेविगेट That's lovely, no? जो हम कर रहे हैं। No, that's lovely because आपने ऑलरेडी ग्रास रूट्स में काम किया है पाकिस्तान में, फिर उसको ऑनलाइन में भी कन्वर्ट करके देख लिया है कि व्हाट इज दैट स्पेस लुक लाइक, and then again bringing it back to another part of the world, which is Canada, and again in different models. I think you are excited to show me something. तो रिसेंटली हमने ये पोस्ट कार्ड्स बनाए हैं। I mean, ये एक प्रोटेक्टेड पोजीशन, पॉजिटिव प्रोटेक्शन, और थोड़ा लाओ ना स्क्रीन में, आधा दिखा। ये अभी लॉन्च होने वाले हैं वहाँ पर मीडिया पे अभी लॉन्च नहीं हुए कि आपने कॉन्डम कब यूज करना है या प्रेप कब यूज करना है। नाइस तो ये अबाउट नाइस। बोल्ड सा है टेस्ट कॉन्फिडेंस के आपने टेस्ट क्यों करवाना जरूरी है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डैडी वाइब्स हमने थोड़ी सी शो करवाए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपना डिस्कस डैडी वाइब्स अनरिस्ट्रिक्टेड यू इक्वल्स टू यू जरा प्रमोट करने की कोशिश की है। यस, जब यू इक्वल्स टू यू हो जाए तो इंटीमेसी जो है वो खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि अगर आप यू इक्वल्स अनडिटेक्टेबल हैं तो मतलब ये है कि आपकी इंटीमेसी अनरिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। जस्ट लाइक भूल जाओ, कोई STI नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई STDs नहीं। So we are talking about just like journal dialogues, not about literacy, कि एक आसान अल्फाज के अंदर समझ आए किसी को कि क्या असलियत क्या है। और बाकी हमारा ये हमारा पोस्टर है चाहिए about oh wow, oh wow, help you, and यहाँ पे भी हमने सेक्सुअल जो सेक्स फैलाने की कोशिश की है, तो अगले की शर्ट कि हम लस्ट है ना वो रियलिटी शो करवा रहे थे, ना कि जो है वो हम बाउंड्रीज के अंदर ही। ये साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए है, तो साउथ एशियन और मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी के लिए है, तो ये आप
कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए पंजाबी जो है, हमारा पूरा पंजाब है इंडिया में, और पंजाबी वैसे भी एक हिंदी की तरह की ही समझ आ सकती है अगर आपको। तो हमने कोशिश की, और इंग्लिश जो है वो वैसे भी अब काफ़ी मुल्कों में जो है आसानी से बोली जा सकती है। तो आप इनसे जो है आप शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है अभी बड़ा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो फेसबुक के ऊपर ही था हमेशा से। तो अभी हमने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जितने मीडियाज हैं, यूट्यूब के ऊपर जो हमारी पॉडकास्ट चलती है तो वो हम चलाते हैं। तो बेहतर ये कि आप हमें लाइक करें इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके पास अपडेट्स आएंगी, और जितनी वीडियोस और जितनी हमारी ये काम है इसके ऊपर आपको मिलेगा आइंदा में। लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, एवरीथिंग विल हैपन. सो I just have 2 minutes time, and I would love for you to kind of end the show or end this episode with one final question. That if you could speak to your younger self, the one just stepping into activism in Pakistan, what would you tell him about survival, love, and staying alive in a world that wasn't ready for him? तो मुझे ये सवाल वैसे समझ नहीं आया, लेकिन मैं अभी भी जवान ही हूँ, और मैं तो खैर, मैं वो जो एज की बात आती है मैं कहता हूँ आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग, तो you know, I mean, still, I mean, there is a lot of love for my community who are struggling, who are compromising their life, but they have to come out, start treatments. There's no any problem at all. There's a lot of discrimination, but there is no discrimination as well when you accept it. Just accept what you are. Just accept it. Yeah, I am this. So what you have, and उसमें क्या होगा कि आप यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, जब आप भागते फिरेंगे और कमलों के अंदर छुपते फिरेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी जो है अपने आप को एक्सेप्ट करें। HIV है, केमसेक्स होता है, बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। सिर्फ गे और बाइसेक्सुअल और गे LGBTI कम्युनिटी नहीं करती, स्ट्रेट कम्युनिटी हमसे ज़्यादा जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी कम्युनिटीज़ जो है वो सेक्सुअल बहुत एक्टिव होती हैं। हमें किसी को भी जो है वो डिक्रिमिनलाइज और डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि खुशी के साथ सबको अपने आप को एक्सेप्ट करिए और बाहर आइए और खुल के जिए।